My name is Kaval Sethi and you are watching Celebrity Talks with Kaval. It's a great pleasure for me to introduce today's guest. Today's guest has participated in singing reality TV shows like Saregama, Indian Idol. He was among the top 10 participants of Indian Idol Season 1. He has sung cover versions of iconic songs in his own voice. Please welcome the amazingly talented Vishal Kothari. Hello Vishal, how are you? Hi, namaskar, Namaste. adab, sat sri akal, and I'm really happy to be on board and talking with all of you. And मेरे जो भी listeners हैं, जो भी सुन रहे हैं मुझे, I am first of all happy New Year, and I hope कि सब लोग everyone is safe, everyone is healthy, doing good, happy. And I'm just here to make everyone happy with my songs and with my maybe smile and with my talking. Oh, thank you so much for coming. It's actually a pleasure for us to have you on our show. Recently I did an interview with Abhijit Sawant, and now you. Ah, So it's so refreshing. yeah. All the old memories and of season 1. It's so good to have you. Correct. Yeah, same here. And Abhijit is a buddy. I mean, we, like every week, maybe once or twice we talk. And recently I did a song. It was a patriotic song and also related to COVID. So I gathered everyone, all the top 10, except Rahul, because it was his wedding, I guess. Yeah, it was his wedding. So we had again we had this whole group everyone was together. So we did a song called Jeetega Phir Se India Mera, which this was my first as a composer and a singer as well. So I wrote the song, I composed the song, and I always wanted everyone to ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं सबको एक बार टॉप 10 मेरे जो भी इंडियन आइडल 1 वाले दोस्त हैं उन सबको एक बार मैं फिर से इकट्ठा कर और एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करूं, और वो फाइनली मैंने जीतेगा फिर से इंडिया में, जिसमें कैलाश खेर जी भी पार्ट थे इस गाने के, एंड इट वाज अ वंडरफुल रीयूनियन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड बहुत मजा आया वो गाना करके. Especially during this tough time, such things really matters a lot. Especially कुछ ऐसा सुनने को मिले जो आपको मोटिवेट करे. और ऐसा कुछ ना, आफ्टर सी वी हैड वन सॉन्ग पल, हम रहे या ना रहे कल, एंड उसके बाद यारो एक गाना आया था, उसके बाद कोई हम लोगों का गाना नहीं आया जी. सो ये मैंने ठान लिया था कि जब भी होगा देन आई विल डेफिनेटली मैं सबको 10 लोगों को एक बार फिर से जमा करके, and then we'll come out with something very good. So we are in like planning also to do future projects, all of us. That's great. Fine, Vishal, I have a lot of questions lined up here for you. Okay, so my first question for you is like how it all started for you. The singing, was it like from KG onwards or from college, or you were a bathroom singer? What was it? See, I belong from a pro business family. I don't belong from a musical family, and it all started very late. Like my there was one of my professor in school when I was in 10th standard. So he used to sing. So I used to get attracted to him a lot. But coming from a Marwadi proper business family, after my schooling, when I started my college, so I also had to go to my dad's office. Okay, so वो मारवाड़ी कम्युनिटी में वैसे मोस्टली रहता है कि अपना जो बिजनेस है वो अपने जो पीढ़ी है वो के फादर का बिजनेस है तो उसका सन ही संभालेगा और तो कोई संभालेगा नहीं. सो दैट इज द होल चेन जो चलता है. सो आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस रेगुलरली, बट कहीं ना कहीं आई वाज सो अट्रैक्टेड टू म्यूजिक बिकॉज मेरे सर गाते थे स्कूल में, एंड देन आई नेवर लर्नड म्यूजिक उसके बाद भी. Then I started listening to Mohammed Rafi a lot. रफी साहब को मैंने बहुत सुना कॉलेज डेज में सुना. उसके बाद में मैंने कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया. सो आई स्टार्टेड विनिंग एंड बट मुझे उस समय इतनी मेच्योरिटी थी कि अच्छा क्या होता है और अच्छे से थोड़ा कम अच्छा क्या होता है. एक लाइन होती है हमेशा
जिसको हमको समझना होता है। अदरवाइज क्या है कि नॉर्मल ऑडियंस तो आपको थोड़ा कम अच्छा है उसमें भी ताली बजाएगी। सो बेस्ट क्या है वो आपको जज करना है उस टाइम पे। देन यू हैव टू एक्चुअली थिंक कि हाँ मुझे ये रास्ते जाना है। सो वो जो उस टाइम पे जो आपको सोचने वाली बात है, उस टाइम पे जो आपको निर्णय लेना है अपनी लाइफ के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरे में मेच्योरिटी थी। और उसके बाद में लाइक विनिंग कॉलेज कॉम्पिटिशन्स एंड वो सब जो सिलसिला चला, उसके बाद में आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक। मैंने वहीं पास में जो मेरे एरिया में एक स्कूल थी, म्यूजिक स्कूल थी, वहां मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद में देन आई गेव ऑडिशंस फॉर सारेगामापा, जब शान ने फिर से स्टार्ट किया था सारेगामा आफ्टर सोनू निगम। सो देयर आई वन 6-7 एपिसोड्स। तो उसके बाद एक मेरा सर्कल बन गया, एक म्यूजिकल माहौल मिल गया मुझे, एक सराउंडिंग बन गई। तो वो होना बहुत जरूरी है और उसमें मैंने अपने आप को अपब्रिंग किया। खैर जब मेरा सारेगामा का एपिसोड टीवी पर आई मीन शूटिंग थी, उसके पहले तक मेरे मॉम डैड को पता नहीं था कि मैं गाता हूँ या, बिकॉज क्या होता जब मैं उनको Oh my बता देता कि God. मुझे फुल फ्लेजेडली म्यूजिक करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे डैड थोड़े से ही वाज अ लिटिल स्ट्रिक्ट साइड पे एंड लिटिल कंजर्वेटिव एज वेल। तो वो मुझे थोड़ा वो कर डीमोरलाइज कर देते थे, इसलिए मैंने बताया नहीं। आई केप्ट ऑन लर्निंग म्यूजिक, या फिर मैं अपने आप ही कीबोर्ड प्ले करने लगता था। मतलब मुझे बहुत सारी ट्यून्स अपने आप ही मैं प्ले करता था। सो जब मेरी शूटिंग थी उसके पहले मैंने उनको बताया कि मैं तो सिलेक्ट हो गया और मेरा शूट है। सो उस टाइम पे रोल ओवर कॉन्टेस्ट होते थे, मतलब आपने एक कंटेस्टेंट को हराया, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ टिल 10 यू कैन गो एंड देन मतलब स्टॉप होता है वहां तक। सो आई वन 5 एपिसोड्स फ्रॉम नोवेयर। आई मीन आई न्यू ओनली रफी साहब के बहुत सारे कुछ गाने मुझे आते थे, तो मैंने जितना हो सके उतना वहां पे उनको रिक्वेस्ट करके मोहम्मद रफी के गाने ही गाए। एंड देन जब मेरी एज होगी 2002 में, अच्छा मेरे पास ये ट्रॉफी भी है, मैं बताता हूँ, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ। Oh. सो ये 2000 ये सारेगामा की ट्रॉफी है। ये Yeah. 2002 सारेगामा पा देख सकते हो आप। जी. तो मुझे मिली थी 2002 में। उसके बाद में देन इंडियन आइडल का जो शुरुआत हुई, इंडियन आइडल जी. मैंने वापस से ऑडिशंस दिए इंडियन आइडल में। सो इट वाज आफ्टर सारेगामापा। हाँ, तो वो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने सारेगामा किया है, आपने इंडियन आइडल किया है, तो कुछ ऐसी बहुत अमेजिंग जर्नी आपकी रही है, कुछ एक ऐसी बात होगी जो आपको हमेशा याद रही होगी उस पर्टिकुलर शो के बारे में। इंडियन आइडल, जी. इंडियन आइडल की तो बहुत सारी बातें हैं। मतलब सी वो एक ऐसा पहला रियलिटी शो था, राइट, और हमको किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वो क्या होने वाला है, राइट। एंड नॉर्मली आप देखते हो सेकेंड थर्ड फोर्थ में पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड कि क्या होने वाला है और हमको जाके वहां पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। सो इट वाज नॉट लाइक विद अस। वी वर इनसाइड व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मतलब टॉप 11। उस टाइम पे टॉप 11 था। सो टॉप 11 के बाद में वी वर स्टेइंग एट अ होटल इन अ वेरी गुड प्रॉपर्टी इन ताज। ताज में हमको रुकाया था सोनी टेलीविजन वालों ने। सो हम लोग तो बहुत मस्ती कर रहे थे, 10-11 लोग जो हम लोग थे, एवरीवन राइट फ्रॉम अभिजीत, अमित सना, राहुल वैद्य, प्राजक्ता, अदिति पॉल, राहुल सक्सेना, हरीश मोयाल, अमित टंडन, एवरीवन। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे वहां पे। और ताज में मतलब आप ताज में रुक रहे हो एंड बाहर क्या चल रहा है हमको कुछ नहीं पता था, दैट हाउ फेमस वी आर। और उसके बाद में जब हम लोग कुछ कहीं कोई एक्टिविटी के लिए बाहर जाते थे फॉर लाइक सम शूटिंग और समथिंग, देन हमने फर्स्ट टाइम जब देखा था कि हमारा इतना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास फोन्स भी नहीं होते थे ना उस जी, जमाने जी, में। फिर फोन्स बिल्कुल. थे बट ऐसे हाँ. डिजिटल फोन्स नहीं होते थे, और नॉर्मल फोन्स थे वो भी हमसे ले लिए थे फोन्स जी. उन्होंने, राइट। तो हमको कुछ नहीं पता था, वी वर टोटली कट ऑफ विद दैट। So back, when you were in Indian Idols, you were with Sonu Nigam, Anu Malik, So what kind of things you have learned from them, when it comes to music? See, I have learned a lot from Sonu Nigam because I was a great fan of Rafi Saab, and even Sonu Nigam was
आइडलाइजिंग रफी साहब पहले पहले, या स्टिल आई मीन। तो मैं सोनू सोनू जी के साथ बहुत ही क्लोज में रहा हूँ, अभी भी आई एम इन टच विथ हिम एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। उनको सुनते सुनते भी हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत मेच्योरिटी उनके गाने सुन सुन के आती है, बहुत जब हम मिलते भी हैं तो वो कुछ टिप्स देते हैं तो वो बहुत काम आती है कि हमको किस तरीके से रियाज करना चाहिए और अपने एक कैरेक्टर, एक एटीट्यूड, क्योंकि गाना अंदर से आता है तो आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, वो सब चीजें काउंट करती है, क्योंकि जब आप गाना गाते हो तो उसमें वो छलकता है। तो ऐसी सारी मेच्योर्ड चीजें हमको गुरुजनों से और उनसे सीखने मिली। और थ्रू आउट द प्रोसेस, जब इंडियन आइडल के बाद हम लोग ने शोज करना शुरू किया तो बहुत शोज किए। तो लाइक मैं तो नया नया था, मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी जब इंडियन आइडल का जो पहला एल्बम बना था, याद आएंगे ये पल, जी उसका जी। एल्बम का नाम मैं भूल गया। सो उसमें सबके सोलो सॉन्ग्स थे, सो इट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग एवर। तो मैंने ये शुरुआत ही तब तब से की। उसके बाद मैंने, एक प्रोसेस रहा है मेरे लिए, जर्नी रही है कि मैंने सीखा है स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बिकॉज इट वाज नॉट ओनली अबाउट सिंगिंग। इंडियन आइडल वाज नॉट ओनली अबाउट सिंगिंग, इट वाज अबाउट योर एटीट्यूड, योर एक्स फैक्टर, योर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग। And I think they groom you exactly, like from A to Z. They completely a makeover for every singer in Indian Idol. या ये ऐसा इंडियन आइडल एक पहला रियलिटी शो मैं कह सकता हूँ। वी वर वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आइडल टॉप 10, मतलब फर्स्ट फाइनलिस्ट में, टॉप 10 फाइनलिस्ट में। वी वर रियली वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट के। हमको भगवान ने चुना है कि हम वो 10 लोग सबसे पहले रहे हैं। So do you राइट। practice daily for your voice, like for your, how do you do your riyaz? Yeah, we practice daily. We do. I learn classical music. मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर राम देश पांडे जी, जिनसे मैं अभी 10-11 साल हो गए, मैं उनसे अभी भी सीख रहा हूँ। बट कोविड में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, एंड देन कोविड में हमने कुछ और चीजें करनी शुरू कर दी म्यूजिक में। जैसे मैं लिखता नहीं था, या इतना कंपोजिशन में मैं इतना इनटू नहीं था, सो आई हैव स्टार्टेड कंपोजिंग एज वेल। तो कोविड में भी हमको बहुत चीजें सिखाई हैं, राइट, हमको पुश किया Of है। course, definitely a lot. Acha, your unplugged version of older songs on your YouTube channel are so good. Especially your love mashup, "Gazab Ka Hai Din." I राइट राइट राइट। really love that. So can you just sing few lines for us? या श्योर श्योर, आई सिंग। मेरे साथ में एक फ्लूटिस्ट है अभी, लोकेश। सो Okay, इफ यू डोंट माइंड देन यू कैन of जस्ट course, of accompany course. us on Yes, that. please. I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. हो देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर न हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से, कसम से, ओ कसम से।
Wow, I completely wow. You know, it's actually my favorite number, and thank you so much for singing. Okay, It's so my beautiful. pleasure. My Acha, pleasure. one thing that you feel like कि the current music industry, and one thing that you hate about today's industry. One thing you Hate as like in, see, about and one thing you everything hate. has been gone so electronic, and I think so sound is dominating Okay. as compared to tune. मतलब sound as in rhythm is very dominating nowadays. एक rhythm आपने एक लगा लिया अच्छा, and then groovy rhythm. So nowadays rhythm matters a lot than tune, right? वो एक जमाना था जब जतिन ललित का वो मेलोडी ज्यादा important होती थी rather than the rhythm. अब वो the rhythm is getting more louder and louder, and people are उनको समझ नहीं आता नॉर्मल जो हमारी मास ऑडियंस है. सो दे Yeah. आर मोर टुवर्ड्स द रिदम एंड साउंड जो आज डीजे या जो हो रहा है. सो नाउडेज नॉर्मली हम लोग शोज भी करते हैं, सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग ऑल दैट डीजे एंड साउंड लाउड म्यूजिक. सो True. आई थिंक सो आई रियली हेट अबाउट दैट, क्योंकि कभी अगर कोई कुछ गाने का दिल भी करता है, एंड एज अ सिंगर ऑन स्टेज इफ यू वांट टू, but mostly all the youngsters, they want all All the very loud pep music, loud, very right? too much. But at the same time indie music bhi aa raha hai, independent music. It is a very good platform for all the good aspiring and budding singers nowadays. True. So people are also doing good. There are also good musicians, good singers who are coming up with very nice voice textures, because बहुत कुछ बदल गया है पहले में और अभी में. Yeah. But yeah, at the same time ये music जो है जैसे वही मेरा कहने का मतलब वही है. मैं किसी को एक पर्टिकुलर जॉनर को वो नहीं करूंगा, बट कहने का मतलब यही है कि रिदम और साउंड बहुत ज्यादा लाउड डोमिनेट कर रहा है आज के टाइम पे. Correct. Fine, Vishal. Now it's a fun time. Now we want to play a game with you. It's called English Gaane. Okay, so I will Google and I have already done it actually. I've translated into English, and you have to guess the song in Hindi. अच्छा. I want Okay. it difficult for you. It's very easy, and अगर आपने साथ में उसको उसके actors भी मुझे बता रही है, so I'll give you a brownie points. ठीक है? Okay. Okay. So the first song is "These nights, this weather, this fickle wind on the bank of the river." These nights, वाह. this weather, these nights. Think about it in ये Hindi. रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी. Okay, the next one. Not everyone gets love here. We are lucky in life. Not everyone gets love. We are lucky in life. Not everyone gets love. Is it a popular song or Very much, any- very, very popular song. very much, very popular? Can you again please tell me the? Yeah, not Can you again everyone repeat? not everyone gets love here. We are lucky in life. Okay, not everyone gets love. ये line सबसे important है. Not everyone gets love. Not everyone gets love. सबको प्यार नहीं मिलता. हर किसी को तो नहीं नहीं मिलता यहाँ यहाँ प्यार प्यार जिंदगी. जिंदगी में. Okay, no worries. Okay, the next सबको प्यार one. नहीं. Yeah. The letters you wrote became thousands of colors in your memory. The letters you wrote The letters you wrote. became thousands of colors in your memory. लेटर सोच के वर्ड्स याद करिए. लेटर मतलब लेटर, लिखने वाला लेटर, उसको हिंदी में याद करो आप. Letters. लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्फाज. नहीं वो लेटर अल्फाज नहीं. बोलते हैं? नहीं वो तो लेटर जब आप किसी को लेटर लिखते हैं. खत. हाँ, तो सोचिए कोई सॉन्ग हाँ. उस पे.
लिखे जो खत तुझे नहीं, Yes. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में. ओके. हजारों रंग. हजारों रंग. ओहो. Thousands color. रंग. Okay. Correct. Okay. Think it's a wonderful day. Just look at this craziness. If you are alone, I am also enjoying alone. By God. Amir Khan. Juhi Chawla and Amir Khan's first movie. वापिस बोलिए. Think it's a wonderful day. Just look at this craziness. If you are alone, I am also. गजब का है दिन सोचो Yes. जरा. Yes, correct. I am not a poet. I am not a poet. But oh, smile, since I saw you, I have become a poet. पोएट को क्या कहते हैं? Okay. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुमको, तुझको मुझको, शायर. शायरी आ गई. Okay, the moon is my heart and moonlight is you. You are far from moon. You are far from the moon. Where is the moonlight? The moon is my heart. बस ये लाइन याद करिए आप. The moon is my heart. The moon is my heart. चांद बोलते हैं ना. Yes. चांद. Yes. मेरे दिल. हाँ. चांद मेरा दिल. चांदनी हो तुम. Correct. चांद से है दूर. Right. Okay. People will say something or the other. It's their business to talk. Ignore it. In case the night should pass in these useless things. People will say something. Translate this in Hindi actually. People will say something. लोग कहेंगे. Yes, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Okay. Two hearts are meeting. Two hearts are meeting, but secretly. दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर. चुपके हो दो दिल. Fine, I think you are so good. Just one answer, I think so. Right? One song, I guess. I did not. Yeah, only one you missed it. Otherwise, you were pro. But I'll give you all the brownie points because आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि like I was not even counting कि मैंने कितने questions आपसे पूछे हैं. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, thank you so much for coming to our show. It really means a lot to us. And if one thing, if you want to say to the upcoming singers, one thing you want to give, one advice from your side to them, what will be that? See, I'll just, that goes for me as well, right? And for the upcoming singers, I would just like to tell them that don't rush, right? आज का सोशल मीडिया दौर इतना फास्ट है, राइट? रोज ट्रेंड चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, बट बिलीव इन योरसेल्फ कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या सबसे बेस्ट आता है. आस्क योरसेल्फ, डोंट लुक एट अदर्स कि उसको ये आता है सो मुझे भी वो आना चाहिए. फर्स्ट आप ये सोचो कि मुझे क्या सबसे बेस्ट आता है, जो मेरी अंदर की आत्मा, मेरा सोल मुझे अंदर से कहता है या बताता है. तो अपनी आवाज सुनो पहले एंड बिलीव इन योरसेल्फ. बिलीव ऑफ कोर्स अपने माँ बाप के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है. और रियाज में रहो, हमेशा रियाज करते रहो एंड बस रश नहीं करो, आराम से रियाज करो एंड दैट्स इट. ये मेरे लिए भी
डेफिनेटली काउंट होता है. Yeah. So अपने अंदर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है. इसलिए संगीत तो चीज ही ऐसी है कि आप संगीत करते करते अपने आप में खो भी जाते हो, और वो एक मेडिटेशन स्टेज में ही आपको ले आता है. सो बाहर की दुनिया से ज्यादा मुझे लगता है बाहर की दुनिया ठीक है, हमको ये जो भी नाटक है वो तो हर किसी को करना पड़ता है बाहर, True. बट हमारे अंदर जाने में जो मजा है, और फिर वो एक निस्वार्थ भावना से हम जो भी अपने आप हमारे कला को जब सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो कुछ अलग ही रंग में दिखेगा और लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली. Oh, thank you so much. All the best for your future projects. Thank you so much for coming for our show. It means a lot. Thank Thank you. you so much. And Thanks a whenever lot. you're Thank you visiting so much. Dubai, please let us know. I would love to host you. For sure, for sure. In fact, there was one show coming up this January, but I don't know, they because of this, January first week, there was a lot February of first things week. happening. February, nahi, January first week. So I mean, because of COVID, there was a lot Oh, of problems happening at the airport. Also, the ticketings and everything were like True. way high. True. So that's the reason it got cancelled. But otherwise, I was about to come to Dubai for a performance. And even your favorite singer Sonu Nigam is in Dubai only. So yeah, He's in Dubai right now. he stays only Acha. here. Huh? He stays here. Yeah, I know. Yeah. Where he hops like from Mumbai, Dubai, Yes. Mumbai, Dubai. Then he's shooting in Calcutta, and then right. Yeah, correct. Thank you so much, Vishal. Pleasure having you. Thank you, Kamal. Thanks a lot. Thank you. Bye. Bye. Okay, bye. Hi, this is Vishal Kothari, and I am here right now on Celebrity Talks with Kaval. It's an amazing show. So please go on their YouTube channel. Their YouTube channel is Celebrity Talks with Kaval. Subscribe their channel, like their channel, and please spread the word.